Can anyone tell me the foundation value out of 9 values? Foundation value. Anyone? पहिली व्हॅल्यू आपण कुठली बघितली होती? पहिली व्हॅल्यू 9 व्हॅल्यू होता ना, टोटल 9 व्हॅल्यू. Trust is the foundation value. So on trust, every value depends. Every value depends on the first value, that is trust. Okay, and what is trust? Trust means keeping trust on another self's intention. ना, सामने वाले के इंटेंशन पे ट्रस्ट करना है ना. क्या ट्रस्ट करना? कि वो मेरी खुशी चाहता है ना. He want to make me happy है ना. Other self, other one want to make me happy. So this is the trust. When you keep this intention in your mind, when you keep this thing in your mind, then we say you have a trust on other self. Okay, the foundation value was trust. The second most important value was respect. Okay, respect means right evaluation. Okay, so not over evaluation, not under evaluation, not otherwise evaluation. So we need to go for right evaluation. Right evaluation is nothing but respect. Then we have seen affection. Clear? Affection is the feeling of acceptance for the others one as relative है ना. दूसरों को relative करके accept करना, so इसे कहते हैं affection. Then fourth value was care. Care is feeling responsibility and commitment for nurturing and protecting of the body. Means care is more related to physical things. Care ज्यादातर किससे related है? Physical से. Yeah. So nurturing and protection of the body of my relative, that is care. Okay, so then next after care we seen care के बाद हमने क्या सीखा? Guidance. Guidance is vatsalya. Guidance means care for self. Yeah, care for self. So care means care for body, and guidance means taking care of self, responsibility of self. So that is guidance. This is the basic difference between care and guidance. Okay, and care and guidance दोनों मिलके reverence बनता है. Getting? Reverence is the feeling of acceptance for excellence. We have seen it. So then we have seen glory. So what is glory? Glory means गौरव है ना. किसका गौरव करना है? अगर कोई दूसरा है ना. Glory is the feeling of acceptance for those who have made effort for excellence. अगर कोई दूसरा उसके एक्सेलेंस के लिए काम करता है, उसके खुद के एक्सेलेंस के लिए, तो उसका हमें गौरव करना चाहिए है ना. जर दुसरा कोण त्याच्या स्वतःच्या डेव्हलपमेंट साठी प्रयत्न करत असेल, एखादा व्यक्ती त्याच्या डेव्हलपमेंट साठी प्रयत्न करत असेल, तर त्याचा आपण गौरव केला पाहिजे. ग्रैटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता. अगर कोई और मेरी खुशी के लिए, मेरी डेवलपमेंट के लिए काम करता है, तो मुझे क्या कहना चाहिए? उसके तरफ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए. जर दुसरा माझ्यासाठी काम करत असेल, दुसरा माझ्या डेव्हलपमेंट साठी काम करत असेल, तर मी काय केलं पाहिजे? त्याला ग्रॅटिट्यूड एक्सप्रेस केलं पाहिजे. म्हणजे मी त्याला कृतज्ञता एक्सप्रेस केली पाहिजे. And the ninth one, that is topmost value, is love. Okay, so love is the topmost value, summary of all the values, you know? So the essence of all 8 values is the 9th value. If any of the 8 value is missing, then 9th you cannot achieve. You know, to achieve the 9th value, you must have all previous 8 values with you. बाकी के पहले सभी 8 values आपके साथ होने चाहिए, तभी आप 9th value पा सकते हैं. Getting? जर सगळ्या 8 values तुमच्याकडे असतील पहिल्या, तरच तुम्हाला 9वी value achieve करता येते. Okay, you will be able to achieve the 9th value. Okay, so love is the feeling of being related to all. Okay, let us will go ahead with. Now further, 9 values पर्यंत आपण बघितलं होतं. So we have discussed with 9 values and we have covered all 9 values. Now we will go ahead with next part in today's lecture. Right feeling within myself or from the other.
So what is this? This means with the first sentence. With this background, we can ask ourselves, can we have continuity? हमें continuity मिल सकती है. किसकी continuity? Happiness की, prosperity की, है ना? Can we get the continuity of happiness and prosperity by right feeling in myself or getting right feeling from others? अब देखिए इसका मतलब क्या है. मला कंटिन्यूड हॅपीनेस कधी मिळू शकतो? फर्स्ट केस, राईट फिलिंग इन मायसेल्फ. माझ्या स्वतःमध्ये जर तशा राईट फिलिंग्स निर्माण झाल्या, राईट फिलिंग्स माझ्या स्वतःमध्ये निर्माण झाल्या, तर मला कंटिन्यूड हॅपीनेस मिळेल का दुसऱ्याच्या मनामध्ये माझ्याविषयी राईट फिलिंग निर्माण झाल्यानंतर मला हॅपीनेस मिळेल? द आन्सर इज फर्स्ट वन. The continuity in happiness, continuity in prosperous, you can achieve only if you have right feeling in yourself. आपल्या स्वतःमध्ये जर राईट फिलिंग असेल तरच आपल्याला कंटिन्यूड हॅपीनेस मिळू शकतो. Then and only then we can achieve continued happiness. If we have right feeling in ourselves. If we are missing with that front, then no, we cannot be continued happy. है ना? अगर हमें खुद को ही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, तो हम खुश हो सकते हैं क्या? नहीं. तो सबसे पहले क्या चाहिए? हमें खुद को पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए. What is my feeling? What I need? है ना? On the basis of natural acceptance. अगर वो मुझे पता है तभी मैं continued happiness पा सकता हूँ. Okay, but generally क्या होता है ना? So we keep the expectation from other. है ना? हम दूसरों से expectation रखते हैं कि दूसरों के मन में मेरे लिए अच्छी feelings होनी चाहिए. No, others should have the acceptance feeling towards me. And we keep on expecting this. That should not be done. Clear? So first you should generate a right feeling in yourself. That will lead you to the continued happiness. Now, role of physical facility in fulfillment of a relationship. What do you think? Relations की fulfillment के लिए हमारे परिवार में, आपल्या परिवारामध्ये relations fulfill करण्यासाठी, to fulfill the relations, what is required? Physical facility, is it required? Physical facility जरूरी है क्या? तो इसका आंसर नहीं. Physical facility is required. Remember, physical facility is must. But the quantity क्या चाहिए? So you can now see that physical facility has a limited role to play in the fulfillment of feeling. ना physical facility limited चाहिए. उसकी रिक्वायरमेंट बहुत लिमिटेड है. You will think of above 9 values. अगर आप ऊपर की 9 values देखेंगे, so उनमें से सिर्फ care है. Care is the only value which is related to the body. है ना? If you do remember, so at that time we studied, है ना? Care means taking the responsibility of nurturing and protecting the body. है ना? So सिर्फ एक वैल्यू में फिजिकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड है. वो कौन सी है? केयर. अदर 8 वैल्यूज हैव निग्लिजिबल रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी. बाकी 8 वैल्यूज में फिजिकल फैसिलिटी जो चाहिए वो निग्लिजिबल है. कंसिडरेबल किसमें है? केयर में है. गेटिंग इट? दैट इज व्हाई वी कैन से द रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इन फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप इन अ फैमिली is very limited. Okay, more required is feelings. ज्यादा क्या चाहिए? Feelings चाहिए. Okay, अब देखते हैं my participation in the family. मेरी फैमिली में पार्टिसिपेशन कैसे होना चाहिए, है ना? वैल्यू, मेरी फैमिली में वैल्यू क्या है? अब इसमें हमें क्या देखना है पता है? दूसरे मेरी कितनी वैल्यू करते हैं ये नहीं देखना. हाउ मच वैल्यू आय एम पुटिंग इन. मी स्वतः किती व्हॅल्यू माझ्या फॅमिलीमध्ये पुट करतो हे आपल्याला बघायचं आहे. दुसरे मला किती व्हॅल्यू देतात, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ कन्सिडरेशन हियर. ते डिस्कस नाही करत आहे आपण काय डिस्कस करतोय? माय पार्टिसिपेशन मीन्स हाउ मच वैल्यू I am putting in my family. So that we are going to discuss here. So my participation, my value with my family is to ensure harmony in the family, ensure mutual happiness, ensure justice,
इन द फैमिली बाय वे ऑफ, ये बातें मुझे अचीव करनी है मेरे फैमिली में, म्यूचुअल हैप्पीनेस है ना, इंश्योर जस्टिस, किस से अचीव करना है? द फर्स्ट वन, इंश्योरिंग राइट फीलिंग्स, ये 9 फीलिंग्स है ना, इंश्योरिंग दीज 9 फीलिंग्स इन माई सेल्फ, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव, ये जो 9 फीलिंग्स है ना, ये 9 फीलिंग्स आई शुड इनकलकेट इन माई सेल्फ, मुझ में पहले खुद में ये फीलिंग्स लाने हैं, है ना, ये 9 फीलिंग्स पहले मुझे खुद को समझने हैं, खुद को अपनी लाईफ में इम्प्लिमेंट करणे हैं, म्हणजे ह्या 9 व्हॅल्यूज मला सगळं समजून घ्यायचे, त्याच्यानंतर माझ्या लाईफ मध्ये मला ह्या 9 व्हॅल्यूज इम्प्लिमेंट करायचे. I need to implement these all 9 values first in my own life, पहिल्यांदा माझ्या लाईफ मध्ये. ओके, now let us will see next. पहिला पार्ट तो झाला. दूसरा पार्ट काय आहे? दूसरा पार्ट आहे expressing or sharing these feelings with other. Other means other part of our family. आपल्या फॅमिली मध्ये दुसऱ्या व्यक्तीसोबत आपल्याला त्या फीलिंग्स काय करायचे? शेअर करायचे. When the other is able to make the right evaluation of these feelings, it leads to his or her happiness, thus leading to mutual happiness. What is meaning of this sentence? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? When the other is able to make right evaluation, जब जो सामने वाला फैमिली मेंबर है वो मेरे इन फीलिंग्स को राइटली इवेल्युएट करेगा, तो वो भी हैप्पी होगा और मैं भी हैप्पी होऊंगा. मी कसा हैप्पी होणार? बिकॉज ही इज गोइंग टू इव्हॅल्युएट राइटली माय इफर्ट्स. तो माझ्या इफर्ट्स ना राइटली इव्हॅल्युएट करतोय. तो राइटली इव्हॅल्युएट करतोय म्हणजे तो मला रिस्पेक्ट देतोय, गेटिंग, विच विल लीड टू माय हॅपीनेस, जे की माझ्या हॅपीनेसचं कारण होईल. गेटिंग, अँड ऑल्सो दीज 9 व्हॅल्यूज विल मेक हिम हॅपी, आणि ते त्याला पण हॅपी करतील. सो माय पार्टिसिपेशन इज टू बी help to the other in their self evaluation, self development. मला काय करायचं आहे तर मला बाकीच्यांना मदत करायची आहे. कशासाठी? सेल्फ इव्हॅल्युएशन अँड सेल्फ डेव्हलपमेंट. त्यांना स्वतःला अंडरस्टँड करायला, त्यांना स्वतःला डेव्हलप करायला. अंडरस्टँड करायचं म्हणजे काय करायचं? मेक देम अंडरस्टँड दीज 9 व्हॅल्यूज. त्यांना ह्या वरच्या 9 व्हॅल्यू अंडरस्टँड करायला मदत करायची है ना. आणि जर आवाज येत नाहीये सर तुमचा. आवाज येत नाहीये? हॅलो, प्रॉब्लेम विथ कनेक्शन? हॅलो, जस्ट सेकंड, आय विल रिसेट माय नेटवर्क. माझं नेटवर्क मी रिसेट करतो, एकच मिनिट. इज इट अ बेटर नाउ? आता थोडंसं बेटर आहे का? यस सर, यस सर. ओके, थैंक यू. ठीक है. So what we are discussing? The second one we finished, na? So with this participation in the family, I have the ability to participate meaningfully in the larger society, in the neighborhood, in the community, and so on. म्हणजे काय बघा की फर्स्ट सगळ्यात पहिली स्टेप काय करायची आहे? I should inculcate these 9 values in my life. पहिल्यांदा ह्या 9 व्हॅल्यूज मी माझ्या लाईफ मध्ये इनकल्केट करणार, म्हणजे माझ्या लाईफ मध्ये मी उतरवणार. सेकंड स्टेप, आय विल मेक माय फॅमिली मेंबर्स टू अंडरस्टँड दीज 9 व्हॅल्यूज. मी माझ्या फॅमिली मेंबर्सना या 9 व्हॅल्यूज अंडरस्टँड करायला सांगणार, त्यांना मदत करणार. आय विल मेक देम टू अंडरस्टँड दीज 9 व्हॅल्यूज टू माय फॅमिली मेंबर्स. This will be the second step. And third step will be implement these 9 values in larger society.
या 9 व्हॅल्यूज माझ्या स्वतःमध्ये त्याच्यानंतर माझ्या फॅमिलीमध्ये इम्प्लिमेंट झाल्यानंतर आय विल ट्राय टू पुट इन दीज व्हॅल्यूज इन लार्जर सोसायटी. मी बाहेर सोसायटीमध्ये वागताना, इतर लोकांसोबत बिहेव करताना या 9 व्हॅल्यूज फॉलो करेन. I will follow these 9 values. Getting it? This is how my participation should be. असं माझं पार्टिसिपेशन पाहिजे या 3 स्टेजवर. इंडिव्हिज्युअल, फॅमिली and then society. Next. The basis for undivided society, अखंड समाज, वर्ल्ड फैमिली. इसका बेसिस क्या है? Undivided society. The feeling of being related to every human being leads to a participation in an undivided society. By living in relationship in the family, we get the occasion to gain the assurance that the other person is helpful to me. The family is a laboratory of sorts in which we live our understanding and relationship. With the understanding of values in human relationship, we are able to recognize the connectedness with every individual correctly and fulfill it. On getting assured, it becomes easy to see that society is an extension of family. That is, what we learn about feeling and value in family, we reflect in society. When we move forward, and that is possible to live in harmony with every human being, thus laying the foundation for an undivided society from the family to world family. सर कितना बड़ा भाषण दे दिया, कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या है? ठीक है, तो बेसिस क्या है अनडिवाइडेड सोसाइटी का, अखंड समाज का बेसिस क्या है? तो समझिए, इसका बेसिस है वैल्यूज इन द फैमिली. सो फैमिली क्या है? सो फैमिली एक लेबोरेटरी है ना, हमारे कॉलेज में होती है ना, फिजिक्स की लेबोरेटरी होती है, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी होती है. वहां पे हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना. सो वट एवर द थिंग्स वी लर्न, वी डू एक्सपेरिमेंट इन अवर फैमिली. जो भी हम सीखते हैं ना, वो उस लेबोरेटरी में क्या करते हैं? हम टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट करते हैं. सो फैमिली क्या है? फैमिली हमारी लेबोरेटरी है. सो हमें उस लेबोरेटरी में क्या प्रैक्टिस करना है? सो उस लेबोरेटरी में हमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की प्रैक्टिस करनी है. ये जो 9 वैल्यूज अभी हमने देखे ना, वो 9 वैल्यूज हमें हमारे फैमिली में प्रैक्टिस करने हैं. वी नीड टू प्रैक्टिस, है ना. वी नीड टू मेक एक्सपेरिमेंट्स ओवर दीज 9 वैल्यूज. ये 9 वैल्यूज पे हमें एक्सपेरिमेंट करना है. कहाँ पे करना है? हमारी फैमिली में करना है. सो उस एक्सपेरिमेंट से क्या होगा? उस एक्सपेरिमेंट से मुझे ये कॉन्फिडेंस आएगा. क्या कॉन्फिडेंस आएगा? यस, है ना, यस आई कैन लिव इन अ सोसाइटी विथ दीज 9 वैल्यूज, है ना. ये 9 वैल्यूज के साथ मैं सोसाइटी में रह सकता हूं. ये कॉन्फिडेंस मुझे कब आएगा? जब मैं ये 9 वैल्यूज मेरे लेबोरेटरी में, मतलब मेरे फैमिली में एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन करूंगा, तब मुझे ये कॉन्फिडेंस आएगा. एट दैट टाइम वी विल गेट दिस कॉन्फिडेंस. गेट इट? सो ये है बेसिस. कौन सा? यूजिंग दीज वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली इन अवर फैमिली. दिस इज द बेसिक. क्लियर? सो कहते हैं ना, हमें घरात पण असंच वागतो का? सर कळू देत ना आपल्याला कधी कधी वर्गामध्ये, किंवा बाहेरची लोक पण आपल्याला म्हणतात घरी पण असंच करतो का? सो व्हाट दे आर रिफ्लेक्टिंग देयर, the way we behave at our home, the way we behave at our house, the similar way we behave outside our home. आपण जसं घरामध्ये वागतो ना, साधारणतः आपला तसाच अप्रोच बाहेर पण असतो. Getting? So that is what is written here. Clear? So we reflect in society when we move forward. ना, हम सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होते हैं जब हम फैमिली से बाहर जाते हैं. And that is possible to live in harmony with every human being. कब पॉसिबल है? अगर आप आपके फैमिली में, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हार्मनी में रहेंगे ना, so then and only then you can be in harmony with other society. अगर आप घर में ही हार्मनी में नहीं रह सकते,
तो आप सोसाइटी में हार्मनी में नहीं रह सकते. That is why the first foundation what you need to do is in your family. फैमिली में हार्मोनी में रहना सीखिए, सबको सिखाइए, उसके बाद आप सोसाइटी में हार्मनी में रह सकते हैं. This is how we can say, thus laying the foundation of an individual society from family to the world family. So family से हमें क्या करना है, world family तक जाना है. Yeah? So this is the point means. The सार्वभौम व्यवस्था, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर. अब ये क्या है? It is the state of realization, the freedom of individual in context of this universe. The respect towards mankind and nature is must to establish the universal order. Having understood the comprehensive human goal, we are able to be in harmony not only with the human beings but also with the rest of nature. We are able to see that we are related to every unit in the nature and ensure mutual fulfillment in that relationship. Working on the dimensions of human endeavor in the light of right understanding, we are able to work for an orderly living of the human society, whose foundational unit is the family and the final dimension is the world family. Universal human order means Sarvabhaum Vyavastha, feeling of being related to every unit, including human beings and other entities of nature. ये फिर से बड़ा भाषण हो गया. अब ये क्या है देखते हैं. ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या? तो यहाँ पे लिखा है ना, व्यवस्था. यूनिवर्स की व्यवस्था कैसी है? यूनिवर्स की व्यवस्था कैसी है? सो यूनिवर्स की व्यवस्था ऐसी मानी जाती है कि every individual thing, let it be a dead thing, मतलब हम पानी कह सकते हैं, जमीन कह सकते हैं, हवा कह सकते हैं. other living creatures, जानवर हो सकते हैं, plants हो सकते हैं, human beings, these all are interrelated. ये सभी क्या है ना, ये सभी इंटररिलेटेड है. ये सभी, इन सभी में एक व्यवस्था होती है. सगळ्यामध्ये एक व्यवस्था आहे, एक ऑर्डर आहे. एव्हरीवन इज रिलेटेड टू, आणि प्रत्येक जण एकमेकाला कशाने तरी रिलेटेड आहे ना. एव्हरीथिंग इज रिलेटेड टू सम अदर. सो व्हाट वी नीड टू चेक, वी नीड टू फॉलो. सो वी नीड टू फॉलो द रिस्पेक्ट. हमें क्या करना है? रिस्पेक्ट देना है. किसको? टुवर्ड्स मैनकाइंड एंड नेचर. हमें सबको रिस्पेक्ट देना है. सबको मतलब किसको? मैनकाइंड, अदर ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉन ह्यूमन बीइंग्स. जो ह्यूमंस नहीं है, मतलब वो कौन है? पानी हो सकता है, पेड़ हो सकते हैं, नदी हो सकती है ना, एनिमल्स हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं. उन्हें हमें क्या करना है? रिस्पेक्ट देना है. रिस्पेक्ट देना है मतलब क्या? सर सामने से शेर आ रहा है तो मैं शेर को रिस्पेक्ट दूंगा, शेर भैया आइए, नमस्ते, आप जंगल के राजा हो. इज दिस द वे? नो. रिस्पेक्ट मीन्स राइट इवैल्यूएशन. आपको शेर को राइटली इवैल्यूएट करना है. मतलब जैसे ही शेर आपको दिखे, आपको इवैल्यूएट करना है कि यस वो आके मुझे खाएगा. सो यू नीड टू रन अवे. आपको वहां से भाग जाना है. दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द टाइगर. This is the definition of respect which we studied earlier. Respect is right evaluation. हमें नेचर की हर एक चीज को राइटली इवैल्यूएट करना है और उसे हमें क्या देना है? रिस्पेक्ट देना है. तब हम कह सकते हैं, देन वी कैन से देयर एग्जिस्ट ए ऑर्डर, देयर एग्जिस्ट ए सार्वभौम व्यवस्था. देखिए ना, नेचर की जो बातें हैं ना, वो हमें रिस्पेक्ट देती हैं, वो हमें राइटली इवैल्यूएट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल
अगर कोई खरगोश आपको देखता है, एखादा ससा जर तुम्हाला बघितलं, सशानं तुम्हाला, तो काय करतो? He runs away from you, है ना? He runs away from you. The similar example which I gave you for the tiger. Yes, he runs away from you. So what does it mean? He rightly evaluated you. आपने उसने आपको पहचान लिया. अब ये आएगा मुझे खा जाएगा. Yes, he rightly evaluated you. Getting it? Then take example of cat. आपके घर में बिल्ली होती है, जो आपको देखती है, क्या करती है? आपके पास आके बैठती है. Yes, because she has a trust towards you. वो आपको ट्रस्ट करती है. She gives you respect. वो आपको rightly evaluate किया उसने. So see, only the humans can think. That is why they get confused in respect and disrespect. And they are only causing the disturbance in order. सिर्फ वो ही है जो order में disturbance लाते हैं. Only human beings. That is why we need to educate human beings. Not the animals, not the plants, not the river. इसलिए हमें नेचर के दूसरे किसी एलिमेंट को ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता है, उनको नहीं सिखाना पड़ता है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज. दे नो इट, दे बिहेव एज पर देयर नेचुरल एक्सेप्टेंस. उनको जो नेचुरली एक्सेप्टेबल है वो वही करते हैं. दे डोंट डू अननेचुरल थिंग्स. ह्यूमन बीइंग्स डू अननेचुरल थिंग्स. दैट इज व्हाई वी नीड टू ट्रेन ह्यूमन बीइंग्स. दैट इज व्हाई वी नीड टू ट्रेन ह्यूमन बीइंग्स टू बी इन ऑर्डर. To be in order. हमें ऑर्डर में रहना हमें सिखाना पड़ता है. Getting it? और वो हम कहाँ से सीखते हैं? सबसे पहले हम वो फैमिली में सीखते हैं, और फैमिली के बाद हम बाहर सोसाइटी में इंप्लीमेंट करते हैं, और वहां दूसरों को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं. Getting it? This is how the सार्वभौम व्यवस्था और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कैन बी मेंटेन. इस तरह से हम वो यूनिवर्सल ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं. ओके, उसके बाद आता है अनडिवाइडेड सोसाइटी, अखंड समाज. Feeling of being related to every human being, an undivided human centric society is one of the higher human goals. ये अनडिवाइडेड सोसाइटी, अखंड समाज, ये क्या है? ये ह्यूमन का गोल है, हायर गोल है. अखंड समाज is the state of the society where all people of different religion and thought process live together and work towards betterment of the society. इसे कहते हैं अनडिवाइडेड सोसाइटी, अखंड समाज, जहां पे विविध जाति के, विविध विचारों के लोग एकत्र आते हैं और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं. उसे कहा जाता, उसे हम कह सकते हैं अखंड समाज, अनडिवाइडेड सोसाइटी. है ना? whereby we are not getting divided with respect to religion, with respect to caste, with respect to color. Getting it? So this is how undivided society, अखंड समाज. 3 activities can be performed to send the message of a holistic society. हम ये 3 एक्टिविटीज कर सकते हैं. किसके लिए? सो होलिस्टिक सोसाइटी का मैसेज सबको देने की, है ना? ये जो ऊपर का पूरा रामायण था ना, ठीक आहे सर, आपने हमें पढ़ाया, तुम्ही आम्हाला शिकवलं युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज काय आहे, न व्हॅल्यूज काय आहेत, आम्ही शिकलो, ठीक आहे, आम्ही आमच्या घरामध्ये इम्प्लिमेंट केलं, ठीक आहे, आम्ही आमच्या 4 मित्रांना सांगितलं, ठीक आहे. But how much is the society? Society is not only my family. Society is not only my friends. It's a whole world. खूप मोठा जग आहे, खूप मोठी सिटी आहे माझी, एवढं मोठं मुंबई शहर आहे माझं, एवढं मोठं पंढरपूर आहे. सो हाऊ आय कॅन पास दिस व्हॅल्यूज, या सगळ्या व्हॅल्यूज, हे सगळं मी कसं पास करू शकतो? तर त्याच्यासाठी आपण 3 गोष्टी करू शकतो. कुठल्या 3 गोष्टी करू शकतो? एज्युकेटिंग सोसायटी थ्रू वर्कशॉप, सेमिनार्स अँड स्ट्रीट प्लेज. सोसायटीला एज्युकेट करा. कसं करा? वर्कशॉप अरेंज करा, सेमिनार अरेंज करा, स्ट्रीट प्लेज अरेंज करा. दिस इज अबाउट ऑर्गनाइजिंग वर्कशॉप, सेमिनार्स अँड स्ट्रीट प्लेज at various levels in society. The activity may be carried out by NGOs. Have you ever heard of any NGO? Have you heard about this, any NGO?
एनजीओज बद्दल ऐकलंय का कधी? नाही ऐकलं? एनिमल राहत ऐकलंय का कधी? एनिमल राहत. एनिमल राहतची गाडी फिरते एक बघा, ॲम्ब्युलन्स सारखी गाडी असते एनिमल राहत म्हणून. Have you ever heard of this? Is famous NGO. That is why I took the name. Animal Rahat. NGO चा लॉंग फॉर्म एक्झॅक्टली मला आठवत नाही आता, बट एनजीओ म्हणजे काय असतात माहिती का? ह्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन्स असतात जे सोसायटी मधलेच काही लोक चालवतात. त्या एनजीओचं काम काय असतं माहिती का? विदाउट अर्निंग मनी, सर्विंग फॉर द सोसायटी. सोसायटीसाठी सर्व्ह करायचं पैसे न कमवता. याला एनजीओज म्हणतात. ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्या कसल्या तरी, त्या ऑर्गनायझेशन्स एनजीओ. आता फॉर एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन अबाउट एनिमल राहत. वो एनिमल राहत क्या करता है? हम हमारे सिटीज में देखते हैं ना, जानवर घूमते रहते हैं, गाय बैल, बहुत सारे जानवर है ना, गधे, बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं, है ना, ऐसे ही छोड़ दिए होते हैं वो, है ना, वो छोड़ दिए हुए जानवर होते हैं. सो उनको कौन संभालता है? अगर वो बीमार पड़ते हैं, उनको कहीं जख्म हो जाती है ना, they feel sick, है ना, if they get ill, वो अगर सिक होते हैं, है ना, बीमार पड़ते हैं, उनको कोई जख्म होती है, कुछ तो बीमारी होती है, तो उसका ट्रीटमेंट कौन करता है? क्या वो ऐसे ही मर जाते हैं? नहीं. सो एनिमल राहत इज द एनजीओ विच वर्क्स फॉर सच एनिमल्स. सो एनिमल राहत ये एक ऐसी एनजीओ है जो ऐसे जानवरों के लिए काम करती है. जहां कहीं भी आपको अगर कोई ऐसा जानवर, ऐसा प्राणी दिखता है, तो आप एनिमल राहत को रिपोर्ट कर सकते हो. सो उनकी एम्बुलेंस आती है, वो उस जानवर को ट्रीट करती है और चले जाते हैं. दे डोंट चार्ज फॉर इट. वो उसके लिए उसको चार्ज नहीं करते. गेटिंग इट? सो दिस इज एनजीओ, एनिमल राहत. ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है. डू यू बिलीव देयर इज वन सेपरेट एनजीओ फॉर डोंकीज? गधों के लिए एक सेपरेट एनजीओ है. कैन यू बिलीव? जस्ट सर्च इन गूगल. गूगल में सर्च कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड इट. देयर इज वन एनजीओ व्हिच इज वर्किंग ओनली फॉर द डोंकीज. गधों के लिए काम करते हैं. वी नेवर थिंक ऑफ सच थिंग्स. हम ऐसे इस बारे में कभी सोचते भी नहीं है. गेटिंग इट? हमारे एरिया में कुत्ते घूमते रहते हैं, हम उन्हें पत्थर मारते हैं, किसी का पैर टूट जाता है, किसी को जख्म हो जाती है ना. सो हाउ दैट एनिमल विल गेट ट्रीटेड, वी नेवर थिंक ऑफ. गधे होते हैं, रास्ते में घूमते रहते हैं, कोई गाड़ी आती है टक्कर मार के चली जाती है, उसको कौन ट्रीट करता है? सो वी नेवर हैड अ थॉट ऑफ इट. बट दिस एनिमल राहत, सच एनजीओज थिंक ऑफ इट. ऐसी एनजीओज उन सवालों पे oh my God, disconnected. हेलो हेलो. येस सर. यस सर. हा, ऑडिबल आहे का? आवाज गेलता ना मधून? हो सर. कुठपर्यंत ऐकलं? What you heard last? Have you heard of Animal Rahat? येस सर. हा, ठीक आहे. ओके. सो दिस इज एनजीओ. तर अशा संस्था, अशा एनजीओज ह्या खूप आहेत आपल्या देशामध्ये, आणि देशातल्या खूप साऱ्या प्रॉब्लेम्स वरती या एनजीओज काम करतात. गेटिंग इट? मग ह्या एनजीओज ना पैसे कुठून मिळतात? So there are lot many private organizations and government organizations which fund these NGOs. ते या NGOs ना फंड देतात, है ना, which fund these NGOs, and these NGOs work for the societal development, है ना. So you can take help of such NGOs for educating the society. Okay. Clear? The second, value education in education institutions. Value education should be introduced in current educational system. Yes, that is why only this UHV is introduced in your syllabus.
So why it is introduced? सर ये तो नर्सरी के पहले दूसरी के बच्चों के लिए सिखाना चाहिए. ठीक है ना, they will learn it, but when you will learn, so आप कब सीखोगे? इसलिए ये कॉलेज लेवल पे भी ऑर्गेनाइज किया है ना. जब अभी जो कि स्टूडेंट्स 4th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में है ना, वो अभी ये यूएचवी सीखेंगे. So for them then this will not be the course during their graduation, but you have not studied it in your schoolings. That is why this is added in your syllabus. Third one, helping to apply values to the real world organizations. Both government and non-government should open up counseling centers which can help their employees or general public to apply values to real life situations. It is about realizing the alternatives in life. Various individuals are on the way of self-exploration, finding their natural acceptance toward holistic approach of life and realizing it all levels, starting from self to family and then to society. Okay, the idea is not to live in isolation or individualism, but with expansion of self to higher levels in the social systems. Okay, so this should be the next step. ये नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए. क्लियर? सो किसकी? सो ये अखंड समाज की तरफ है ना. व्हाटएवर वी हैव स्टडीड नो दिस अखंड समाज है ना, वो हम कैसे ला सकते हैं? तो बाय क्रिएटिंग दिस है ना. सो बाय क्रिएटिंग दीज एजुकेशंस, उससे हम अखंड समाज की प्राप्ति कर सकते हैं. ओके, let us will see next some basic questions that we need to ask ourselves. What is society? It's made up of individuals who agree to work for the mutual benefit. इसे society कह सकते हैं क्या? A different या फिर a different sections of people living in different regions, a divided society, people coming together forming an undivided society. The second one. Basic questions continued. Do you want to live in harmony only within limited set of people or with everyone? क्या आप सिर्फ आपके परिवार, आपके मित्रों के साथ हार्मनी में रहना चाहते हैं, या सोसाइटी के हर एक एलिमेंट के साथ आप हार्मनी में रहना चाहते हैं? Do you want every individual or family to be happy? आप हर एक इंडिविजुअल को और हर एक फैमिली को हैप्पी देखना चाहते हैं, या सिर्फ खुद की फैमिली को हैप्पी देखना चाहते हैं? What you want? Do you want a fearless, related and trustworthy society? आपको ये चाहिए fearless, related and trustworthy. Trustworthy मतलब जिसपे हम विश्वास रख सकते हैं, ज्याच्यावरती आपण विश्वास ठेवू शकतो, अशी सोसायटी तुम्हाला पाहिजे का? It is okay with a society that is filled with mistrust, fear, etc. So our natural acceptance feels that we want to be in harmony with everyone and want to make everyone happy. We also want to have a harmonious society, trustworthy society that we all want. What is that we human beings want to ensure? हमें क्या ensure करना है? So ये चार बातें हमें ensure करनी है. These are 4 human goals. Right understanding in individual, खुद में right understanding लाना. Prosperity in families, family में prosperity लाना. Third, fearlessness, trust in the society, society में trust लाना. और last, coexistence with the nature, nature के साथ coexistence में रहना. All these are basic requirement to ensure sustainable happiness and prosperity. We cannot do away with any one of this. लेकिन क्या हम ये चार बातें पाने के लिए काम कर रहे हैं? Are we working for? That's the question. ये एक क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं है. It's the matter of discussion, है ना. So are we working towards fulfilling these human goals? This is a point for discussion. It is not a single line question or yes no question. No, it is not yes no type of question. It is a point of discussion. क्लियर? अगर इस पॉइंट का, इस डिस्कशन का कंक्लूजन नो आता है, तो हमें सोचना है व्हाट शुड बी द नेक्स्ट अप्रोच देन. ओके, ठीक है.
इन चारों पे क्वेश्चन मार्क है ना करंट सिचुएशन में. So do we have right understanding in every individual? Do we have prosperity in every family? Do we have fearlessness, trust in society? Do we have coexistence with the nature? So all will have question mark today. So let us review. ये क्या है इसमें? तो ये जो 4 पॉइंट्स है ना उसी पे ये लिखा हुआ है पैराग्राफ. These 4 points are discussed here. The 4 goals of human के 4 goals वो यहाँ पे explain किए हैं. Right understanding in individual. So we are talking about information and skills, but we are ignoring the need of right understanding. We are ignoring the need to understand happiness correctly. We are ignoring the need to understand and be in relationship. है ना? So prosperity in family, we are not able to see that the needs of physical facilities is limited and that we can have more than what we need. So मतलब क्या है ना, ये जो सभी points है ना ये हमने ऊपर discuss किए हुए हैं. So all these points, so we have discussed in previous points. Prosperity in family, इसका मतलब क्या है कि ना उसकी physical facilities की need limited होती है ना. So जरूरी क्या है family में prosperity लाने के लिए? तो feelings है ना, right understanding of the feelings वो जरूरी है. And but what we are doing currently is we are currently giving more focus on the physical facilities than trust in the society. Yes, this is missing. We are having fearful society. So everyone is working for power है ना, हमने देखा था. So we are designing high standard weapons है ना. एक WhatsApp में मैसेज भी आता था है ना. So current की सिचुएशन अगर हम देखें तो हर एक देश के पास, हर एक कंट्री के पास इतनी न्यूक्लियर पावर है कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इतनी भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है कि वो खुद के देश को हैंडल कर सके है ना. सो दैट इज व्हाट इज क्लियर. सो मिसिंग पॉइंट हियर. सो हर एक देश के पास उतने मिसाइल्स हैं ना. यू कैन सी, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ अमेरिका, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया एज वेल. सो वी हैव enough of missiles and atomic energy in order to destroy the world, but we are not having enough facilities to take care of our health system of our India, you know? So that is what something is missing in our society. So we all need to work on it. So we may be working in future, है ना. So आप लोग है ना, आप जैसे graduates, not only you, see all the engineering graduates are studying this. हर एक इंजीनियर ग्रेजुएट, हर एक ग्रेजुएट इस देश का, अगर इस देश का ये भी सीख रहा है, is undergoing this UHV training. हर एक को ये UHV training mandatory है. So everyone is going to have this UHV training. So इससे अगर 1% भी फर्क आता है, at least 1% of people will implement these values in his life, then there will be a different India in the coming future. We all can see, or we all will make a different India in the future. Yeah. So that is why these subjects are added. ये add उसी के लिए किया है. Okay. So let us will discuss these further points. In order to facilitate the fulfillment of the basic aspirations of all human beings in this society, the following comprehensive human goals need to be understood. है ना, आपको ये goals understood करने चाहिए. समाधान. So right understanding is samadhan. Right understanding is necessary for the human beings. For all human beings, when one does not have the right understanding, one remains disturbed and also acts in a manner so as to create disharmony with other human beings, as well as with the rest of nature. Samriddhi, prosperity is needed in every family. Prosperity in the family means that the family is able to identify its needs and is able to achieve more than its requirement. Abhay, trust in society means every member of the society feels related to everyone else, and therefore there is a trust and fearlessness. है ना, जहाँ पे विश्वास होगा वहाँ पे fearlessness होगा. सह अस्तित्व, coexistence, है ना. So coexistence in nature means there is a relationship and complementarily मतलब पता है ना, we have discussed, है ना. So every individual is complementary to another.
Yeah? So, and complementary among all the entities in nature, including human beings. This is the comprehensive human goal. With little exploration, we'll find that all four are required for human society. We are not satisfied with anything else than this. This is the basic minimum requirement to ensure sustainable happiness and prosperity. Okay, so here at we end our third chapter. यहाँ पे हमारा third chapter finish होता है. Okay, so then only remains is the last chapter. और last chapter के भी कितने points है? सिर्फ 2 points हमारे syllabus में. We have only 2 points in our syllabus. Okay, ठीक है. सर हाँ बोला. सर वर्कशॉप रायटिंग बद्दल काय सांगितलं ना? हाँ काय सांगायचं बोला की काय विचारायचं आहे? वर्कशॉप रायटिंग सर. वर्कशॉपचं राईटअप टाकले की तुमच्या डिव्हिजनचं हे आहे का नाही आपलं लेक्चरचं शीट आहे का नाही त्याच्यामध्ये वर्कशॉप म्हणून एक टॅब केली आहे त्याच्यामध्ये राईटअप टाकलेले आहेत. सध्या तिथं 2 वर्कशॉपचे राईटअप आहेत. कुठले 2 आहेत? एक आहे इलेक्ट्रॉनिक्सचं, ठीक आहे, इलेक्ट्रॉनिक्सचं आहे आणि दुसरं आहे मेकॅनिकलचं. तिसरं कॉम्प्युटरचं टाकायचं राहिलेलं आहे. तर हे दोन्ही राईटअप्स तिसरं कॉम्प्युटरचं मी टाकायला सांगतो. लिहायला सुरुवात करा. आता कुठं लिहायचं? कुठंही तुमच्या नोटबुक मध्ये जागा शिल्लक असेल एखाद्या दुसऱ्या तर त्या नोटबुक मध्ये तुम्ही ते लिहू शकता. क्लिअर? नोटबुक मध्ये लिहा. त्याच्यानंतर तुम्हाला ते स्कॅन करूनच अपलोड करायचं. तुम्हाला फिजिकल कॉपी सध्या तरी काही सबमिट करायची नाहीये. गेट इट? सो यू नीड टू सबमिट इट इन सॉफ्ट कॉपी ओनली. क्लिअर? त्याच्यामुळे व्यवस्थित तुमच्या सुंदर हस्ताक्षरामध्ये कुठेही लूज पेजेसवर लिहा. वही नवीन करायची गरज नाही. वही जर शिल्लक असेल तुमच्याकडे तर त्या वहीमध्ये लिहा आणि त्याची स्कॅन कॉपी करून शेअर करा. ठीक आहे? त्याच्यामध्ये जे वर्कशॉपचं एक राईटअप टाकलेलं आहे मेकॅनिकलच्या वर्कशॉपचं ते पूर्ण सफिशियंट आहे. तेवढंच पुरेसं आहे. ते सगळं तुमच्या सिलेबसला पण आहे. त्याच्यामुळे त्यातलं काहीही स्किप न करता सगळं लिहा. क्लिअर? त्याच्यामधलं फक्त मिलिंग मशीन तेवढी तुमच्या सिलेबसला नाहीये. बाकी सगळं तुमच्या सिलेबस मधलं आहे. त्याच्यामुळे ते व्यवस्थित अभ्यास करून लिहा. त्याच्यानंतर जो इलेक्ट्रॉनिक्सचा पार्ट आहे इलेक्ट्रॉनिक्सच्या पार्ट्स मध्ये काहीतरी थोडेसे क्रिटिकल डायग्राम्स आहेत वाटतं. ए डिव्हिजनची मुलं म्हणत होती मला. मी काय ते बघितलं नाही. मी एकदा ते चेक करतो आणि जर काही त्याच्यामध्ये करेक्शन्स असतील तर त्या उद्यापर्यंतच अपडेट होतील. जर उद्यापर्यंत करेक्शन झाल्या नाहीत तर त्याचा अर्थ तुम्हाला ते आहे असं लिहायचंय. लक्षात घ्या. कारण माझं उद्या लेक्चर नसणार आहे. सो यू विल नॉट बी एबल टू आस्क मी देन. मग मला फोन करून तुम्ही विचारू शकता. काही हरकत नाही, चालेल. पण सध्या तरी ऍटलिस्ट मेकॅनिकलच्या वर्कशॉपचं लिहायला तरी सुरुवात करा. ओके? वर्कशॉप हे आपल्या सिलेबस मधला एक पार्ट आहे. त्याला 50 मार्कचा टर्मवर्क आहे. त्याला इंटरनल टर्मवर्क मार्क्स 50 आहेत. त्याच्यामुळे तो महत्वाचा मुद्दा आहे. गेट इट? ते लिहायचं स्किप करू नका. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मस्ट राईट. ओके? चल, काय विचारायचं अजून? एनिथिंग इन दॅट रिस्पेक्ट? Anyone else want to ask something? No, sir. Okay, ठीक है then. We can stop here. Okay, thank you.